Welcome children, welcome to my channel Maths at Go. In this video, we will do the addition and subtraction part of algebraic expression. We will learn how to add and subtract the algebraic expression. So without wasting any time, let's get started. Like first of all, like you have to add the terms 8xy, 15xy and 3xy. Okay, before we solve the question, the first thing you need to know that you can add only the like terms or you can subtract only the like terms. So now you may ask the question that what are the like terms? What is the meaning of like terms? So firstly, we will see like about the like terms. Okay. Okay. So the like terms. Terms having the same alphabetic letters are called like terms. Like in this question, we have the same alphabetical letter like xy, xy and xy. So this expression contains the like terms 8xy, 15xy, 3xy. Okay, all are the like terms. So we can add 8xy, 15xy and 3xy. Okay, firstly I will explain in English. Then after that I will explain the next question in Hindi. Okay, so both for English medium or Hindi medium, this video will be helpful. Okay, so now you understood the like terms, the concept of like terms having the same alphabetic letters like xy, xy, xy are called like terms. If here in this question it is written like 7x and 15xy, if the question is like this 7x and 15xy, so this question does not contain the like terms. X and xy both are different, so this type of questions or the yes, where the terms are different, where the alphabetical letters are different, are called unlike terms. Here, we write xy, then it is called like term. Okay. So it's very easy to add like terms. You have to write the like term xy. Okay. And you have to add 8xy plus 15xy plus 3xy. So just write xy and add the numerical coefficient like 8 plus 15 plus 3. So what we will get? So we will get 8 plus 15 plus 3, 26. 26xy. I hope you understand. Next question I'll explain in Hindi. Okay. So let's move. So here's our next question. Question number 2. You have to add 3a plus 2b minus 4c, 1 algebraic expression and 2c minus 5b plus 8a second algebraic expression. तो मैंने अभी क्या समझाया था? लाइक टर्म्स क्या होते हैं जिसमें टर्म्स कंटेन सेम अल्फाबेटिकल लेटर. देखो ए वाला ये लाइक टर्म है, इसमें कोई ए है, ये रहा ए. तो ऐड क्या हो सकता है? 3a में 8a ऐड हो सकता है, 3a में 2b ऐड नहीं हो सकता, बिकॉज वो क्या हो गए? अनलाइक टर्म्स हो गए. तो ओनली लाइक टर्म्स ऐड होती हैं. तो सबसे बहुत इजी मेथड क्या है कि लाइक टर्म को एक साथ लिख लें हम. ओके, आपको 3a में 8a ऐड हो सकता है क्योंकि सेम अल्फाबेटिकल लेटर है, तो ये लाइक टर्म है. तो 3 में 8 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा? 8 प्लस 3 11 और a एज इट इज हम लिख देंगे. ओके, हमने लिख दिया a 11 a. इसमें साइन भी आपको ध्यान से देखने हैं. अब b वाला देखेंगे, ये क्या है? प्लस 2b और ये क्या है? माइनस 5b. तो प्लस 2 और माइनस 5 सॉल्व करो, कितना आएगा? इंटीजर्स पढ़ चुके हैं. प्लस 2 माइनस 5, 2 में से 5 में से 2 गए 3. साइन बड़ी डिजिट का, बड़ी डिजिट क्या है? 5. 5 के साथ कौन सा साइन है? माइनस का. तो आंसर में आएगा माइनस. तो हमें यहाँ पे क्या आएगा हमारा? माइनस 3b. जो लाइक टर्म का अल्फाबेटिकल लेटर है वो तो हम एज इट इज लिखेंगे. अब थर्ड देखो, थर्ड क्या है? माइनस 4c और यहाँ पे है प्लस 2c. कॉमा हटा के हमें प्लस करना है, कॉमा हटा के, क्योंकि हमें ऐड करना है तो कॉमा हटा के हम प्लस लगा देंगे. माइनस 4c प्लस 2c, माइनस 4
एंड प्लस 2 कितना आएगा, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 गया 2, साइन बड़ी डिजिट का 4 के साथ माइनस है तो माइनस, तो आएगा आंसर -2c। हो गया ना 1 सेकेंड में। बट अगर आपको अपनी नोटबुक में करना है तो उसको प्रॉपर लिखना पड़ेगा। सेकेंड लाइन में आप इसको प्रॉपर लिखेंगे, इस कॉमा हटा के प्लस करके, उसके बाद आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर आपको माइंड में सॉल्व करना है विद इन योर माइंड और विद इन, यू हैव टू सॉल्व विद इन 1 सेकेंड, देन यू हैव टू सॉल्व लाइक दिस। ओके, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं उसको, नो नीड टू राइट एनीथिंग। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें तीन तीन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है। तो हम पहला देखेंगे ए एक्स वाला। ए एक्स वाला हमारा ये है, ठीक है। और कौन सा है ए एक्स वाला? अब यहाँ नेक्स्ट लाइन पे आपको कॉमा हटा के क्या लगा देना है, प्लस लगा देना है। मैं यहीं पे कर रही हूँ, आपको ये स्टेप नेक्स्ट लाइन में लिखना है, कॉमा हटा के प्लस लग जाएगा। और ए एक्स वाला कौन सा है, एक ये रहे। और ए एक्स वाला कौन सा है, एक ये है, ठीक है। अगर आप चाहें ना एक साथ भी लिख सकते हैं ऐसे, 2a, मैं लिख के देती हूँ, लिख दिया ना। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है, बी वाई वाला कौन सा है, एक ये है बी वाई वाला, मैं पर्पल से मार्क कर रही हूँ। बी वाई वाला एक ये है और बी वाई वाला एक है, इसको भी हम लिख देते हैं। इसको भी मैंने लिख दिया, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि हमें साइन के साथ लिखना है। जैसे 3by कौन सा था, प्लस का आया। 5by कौन किसका था, प्लस का है। लेकिन 9by से पहले कौन सा साइन लगा है, माइनस का, तो माइनस का ही। अब हम बचे हैं cy वाले, वो भी एक साथ लिख देते हैं। ओके, वो भी हमने लिख दिया एक साथ। जैसे पहला 4cy लिख दिया, फिर -3y, चाहे आप उसको बीच में लिखो या इधर लिखो, एक ही बात है, बट साइन के साथ लिखना है। अगर 3cy माइनस का है तो माइनस का ही आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। तो ए पहला टर्म हमारा क्या है, लाइक टर्म ए एक्स है, तो हमने लिख दिया ए एक्स। अब न्यूमेरिकल वाले को हम सॉल्व करके लिख देंगे कि न्यूमेरिकल वाला सॉल्व करके क्या आएगा, 2, और जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे क्या होता है, 1, तो 2 - 1 1, 1 + 4 5, तो ये आ गया 5। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बी वाई है, हम बी वाई लिख देते हैं पहले, बी वाई 5 + 3 8, 8 - 9 कितना आएगा, -1, 8 - 9 -1, 1 को लिखो या ना लिखो एक ही बात होती है। उसके बाद हमारा क्या है, cy लिखा, और उसका न्यूमेरिकल उसका भी कर लिया। 4 + 6 10, 10 - 3 7, लेकिन किसके, प्लस के। तो ये आ गया हमारा आंसर। इसको आप अपने माइंड में भी बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो, कॉपी में लिखने की भी जरूरत नहीं है, बट एग्जाम्स में आपको नोटबुक में ऐसे पूरा एक्सप्लेन करके दिखाना पड़ेगा। नाउ एक सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन, फर्स्टली मैं हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश। ओके, तो इसमें एक ट्रिक याद रखना, जो फ्रॉम के बाद वाला होता है ना, फ्रॉम के बाद वाला, इसको हमेशा हम पहले लिखते हैं। जैसे फ्रॉम के बाद वाला यहाँ एक्सप्रेशन क्या है, 4a, ये मैंने लिख दिया 4a + 5b + 6c। उसके बाद हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस का साइन, और हमें ब्रैकेट लगाना ही लगाना है सब्ट्रैक्ट में। अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। और इस मेथड को, जिस मेथड से मैंने प्लस और माइनस किया है, इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल मेथड। एक कॉलम मेथड भी होता है, उससे भी मैं करके दिखा दूंगी, कॉलम मेथड से। पहले हम ये हॉरिजॉन्टल मेथड सीख लेते हैं। ओके, ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, उसके बाद जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, पहले सेम एक्सप्रेशन, ब्रैकेट ओपन होंगे, माइनस के बाद जो ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। 2a प्लस का है तो किसका हो गया, माइनस का, बार माइनस है तो 2a ब्रैकेट के अंदर किसका था, कोई साइन नहीं था, इसका अंदर प्लस का, तो माइनस का हो गया। अब 3b किसका है, प्लस का, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3b। और c किसका है, माइनस का, तो किसका हो जाएगा, प्लस का c। अब हम इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे अब तक हमने सॉल्व किया। a वाला 4a - 2a, डायरेक्ट कितना आएगा, 2a। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है 5b - 3b, कितना आएगा, प्लस का 2b। जैसे ऐड में किया था बिल्कुल सेम वैसे ही बन गया क्वेश्चन। 6c और प्लस का c कितने हो गए, दोनों प्लस के हैं, ऐड हो गए, 6 + 1 7, 7c आंसर। ये हमारा आंसर आ गया। ओके, सेम इन दिस
subtraction, we have to write first term after the from. Like here it is written c plus 3d. So we have to write c plus 3d first. Okay, because we have to subtract minus 8c from c plus 3d. So we have to write c plus 3d first, then put a minus sign, then put a bracket. You need to put a bracket, then you have to write this minus 8c. Okay, here when you open the bracket, the sign of the terms will change. Here 8c is minus 8c, but before the bracket here is a minus sign. So when we open the bracket, the sign of 8c will change. We have to write plus 8c. Minus will change into plus. So now we can solve like we have solved in addition. C plus 8c equals to c means 1c. If there is no digit, it means there is 1. 1c plus 8c equals to 9c plus 3d is our answer. Okay, this is the horizontal method of subtraction and addition. I will explain the column method also. Okay. In the column method, you have to write this like this. Again, from 4a minus b minus 2c, we have to write it first. क्योंकि हमें 4a minus b minus 2c में से minus करना है, तो उसको हम ऊपर लिखेंगे. And then we have to write 5a minus 3b plus 2c. Okay. Now we have to subtract this. So put a minus sign. And when we put a minus sign, the sign of the digits will change. जो sign है digits के 5a plus का है तो minus का हो जाएगा. नीचे वाली डिजिट के सबके साइन चेंज हो जाएंगे. हमने उल्टे कर दिए साइन. अब हमें देखना है 4a minus 5a. 4 minus 5, it means minus 1a. You have to subtract 4a minus 5a. It means you will get minus 1a. Again, minus b plus 3b. So you will get plus 2b. You have to solve it in your rough notebook also. Minus 2c plus 2c. It means 0. So plus 0. This is our column method. It is same like horizontal method, but in column method you have to write like this, and in horizontal method you have to like that, which I have explained earlier. Okay. सेम क्वेश्चन. अब हम सेम क्वेश्चन को यहाँ से हम फ्रॉम हटा दें और ऐड लिख देंगे, तो हम प्लस करके भी देखते हैं कॉलम मेथड में कैसे हम प्लस करेंगे. Like in addition, in the column method, we don't need to write like 4a minus b minus t at first. Okay, इसमें हम कैसे भी लिख सकते हैं ऐड में. तो हमने ऐड कर लिया और इसमें हमें साइन चेंज नहीं करना होता. तो then 5 plus 4 equals to 10. 10a. बस. सब्ट्रैक्शन और एडिशन में यही अंतर है. सब्ट्रैक्शन में यू हैव टू चेंज द साइन, बट इन एडिशन नो नीड और यू डोंट हैव टू. माइनस 3b माइनस b माइनस 4b. माइनस 3 माइनस 1 कितना हो गया? माइनस 4. 4b. अगेन हेयर प्लस 2 माइनस 2c प्लस माइनस माइनस हेयर 0. ओके, I think there is a mistake in subtraction. Here minus 2c and minus 2c. It is plus minus 4c. Okay, sorry for that because we are doing subtraction there. Okay, 4c. 4c minus, because minus 2c or here the sign is minus 2c minus 4c. Okay, so it is very common to error is human. So sorry for that. Okay, I hope you understood the horizontal and the column method of subtraction and addition of algebraic expression. Okay, next video I will upload for the multiplication and division. Till then, practice more and more, and bye bye and take care, and don't forget to subscribe my channel and like the video. Thank you. Bye bye.